a great journey of learning about web development with Women Fortune Tech. We are here once again with another session of our UI and UX design course. For those students who missed the previous sessions, let me recall shortly about what we have learned in those sessions. After the introduction to UI and UX design, we discussed Figma and then topography and its basic principles such as readability, hierarchy, etc., which was about how to assemble written text in a design. A few people are interested to learn about these all in detail. You can also visit our YouTube page where the detailed session of all these topics are available. I will request our admin to please share the YouTube link and the chat box so that our students have a quick and easy access to these incredible courses. Also, I want you all to please mark your attendance by just writing your name, as we will provide you e-certificates after the completion of this course. So moving ahead to our new topic, which is color theory and psychology, we have once again our brilliant instructor, Ma'am Mahariaz, who is actually a senior UI and UX designer at Aura Digital Agency and also a mentor at DEN. Welcome, Ma'am Mahariaz. With her expertise and knowledge today, Ma'am Mahariaz will guide us how the right color palette enhance our design outlook. Without any further delay, let's embark into this interesting session. Ma'am Mahariaz, you may please take the start now. Assalamu alaikum. Thank you so much, Ma'am Maria. Okay, let's start the session. Bismillahirrahmanirrahim. Let me share my screen. Okay, so today's topic is about color theory. Wait a minute. Okay. सो व्हाट इज कलर थ्योरी कलर थ्योरी को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में, कलर्स की कौन सी टाइप्स होती हैं या कैटेगरीज होती हैं, कलर हार्मोनी क्या है, ये सब कुछ आज के जो लेक्चर है इसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कलर थ्योरी होती क्या है? सबसे पहले यकीनन कोई डिज़ाइन होता है मोबाइल ऐप का या कोई भी वेबसाइट होती है, उसमें कलर्स होते हैं, कोई ब्लैक एंड वाइट तो नहीं होती। तो कलर्स जब भी हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक ऐप में या फिर वेबसाइट में, तो उसके पीछे कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है। ये नहीं है कि हम बस अपनी मर्जी से रैंडमली कलर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है, कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट है, कोई टेक की वेबसाइट है, या फिर अप टू सो ऑन बहुत सारी वेबसाइट होती है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई किसी की पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो हर वेबसाइट में कलर यूज़ होते हैं और उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। Color theory is a set of it's a set of guidelines for using and mixing colors to create visual appeal in your UX design. It helps designers improve the aesthetics of the design by using color effectively. ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है in other words कि ये कुछ बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे कि जब कलर्स को मिक्स करते हैं या यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, एक अच्छा डिज़ाइन, इफेक्टिव डिज़ाइन बनाने के लिए, तो उसका क्या तरीका है, ठीक है, जो कंप्लीट कलर थ्योरी के अंदर आता है। So all colors have associated meanings, and when used together or in a contrast, these color meanings become more significant. Like जैसे मैंने बताया है, हर कलर का मतलब कि जो कलर व्हील है, इसमें हर कलर का अपना एक मीनिंग है, ठीक है। और हर मीनिंग जो है वो हम पहले देखते हैं, देन हम यूज़ करते हैं अपनी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव। ओके, साइकोलॉजी ऑफ कलर क्या होती है, ठीक है। साइकोलॉजी कह सकते हैं कि जो मैं आपको बता रही हूँ, किसी कलर के पीछे जो एक मीनिंग है, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, जब हम यूज़ कर रहे हैं। कलर साइकोलॉजी इज all about how human minds take colors, how they feel when they see specific color. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कलर साइकोलॉजी। आपने देखा होगा जब भी हम ग्रीन कलर यूज देखते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है, तो लाइक सिग्नल्स पर होगा या फिर किसी वेबसाइट पे कोई मार्क होगा, ग्रीन टिक होगा, तो हम इसे हमेशा किस चीज़ से रिजेंबल करते हैं? पॉजिटिव,
पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिविटी से करते हैं। और जब हम रेड कलर देखते हैं, रेड कलर हमेशा एक वार्निंग, एक वार्न अलार्म लाइक वार्निंग टाइप जैसे सिचुएशन होती है ना, उससे हम रिजेंबल करते हैं किसी को, रेड कलर को। इसी तरह अगर ब्लू कलर की बात करें, ब्लू कलर हम यूज़ कर सकते हैं लाइक आपने देखा होगा कोई ट्रस्ट की बात होती है, ट्रस्ट मतलब कि अक्सर ये जो टेक्नोलॉजीज़ या फिर ये कह सकते हैं ये जो ऐसी मतलब कंपनी जिनको ट्रस्ट बिल्ड करना हो अपने ऊपर, वो ब्लू कलर यूज़ करते हैं। जैसे डेल है, उनके लोगों में आप देखें ब्लू कलर का उनका लोगो है। ये सर आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ प्रैक्टिकली। इसके अलावा ग्रीन कलर जो होता है वो नेचुरल चीज़ को शो करता है, नेचुरल। लाइक आपने देखा होगा कोई ऐसे हर्ब्स की या कोई ऐसे नेचुरल चीज़ की कोई वेबसाइट है, तो ग्रीन कलर उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, कि उसमें नेचुरल इफेक्ट है, एक ग्रीन, एक स्मूथ सा, एक क्लीन सा। तो हर कलर का अपना एक मीनिंग है, ठीक है। इस तरह अगर पर्पल को आप देखें, रॉयल्टी इसमें होती है, मतलब एक रॉयल ब्रांड को है ना, कोई अपने आप को रॉयल ब्रांड शो करना चाह रहे हैं तो वो पर्पल यूज़ करता है, ठीक है। तो हर कलर के पीछे एक बात होती है। This color psychology was not meant for UI designing, but we designers taking benefit of this theory to grab attentions of their mind, and these color really force them to do certain action. यही बात जो मैंने आपको बताई है कि कलर्स जस्ट यूआई यूजर इंटरफेस जो होता है ना, मतलब कि जो दिख रहा है डिजाइन, उसके लिए नहीं हमने ऐसा किया कि ये कलर अच्छा लग रहा है तो हमने पिक कर लिया, ऐसे कभी भी नहीं होता। जब भी हम कलर यूज करते हैं उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा एक जैसे मैंने बताया ये हर डिटेल है। बेसिकली जो हम ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमंस जो इंसान है, उनको उनके माइंड के लिहाज से जो कलर्स एक स्टैंडर्ड कह लें जो बनाया गया है वो ये है, ठीक है। रेड जो होता है वो हमेशा एक्साइटमेंट को, स्ट्रेंथ, लव, एनर्जी इन चीज़ों को शो करता है। ऑरेंज कॉन्फिडेंस को, सक्सेस, ब्रेवरी, सोशियबिलिटी इसको। येलो जो है क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, वार्म, चेयर को। इस तरह नेचर को, हीलिंग, ये हर चीज़ का लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रस्ट, पीस, लॉयल्टी, कॉम्पिटेंस। इसी तरह पिंक जो है वो मोस्टली फीमेल्स टाइप वेबसाइट जो होती है ना, इसमें आप देखते होंगे फीमेल्स की होती हैं, यहाँ से कुछ फीमेल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पिंक यूज होता है कि फीमेल्स को पिंक पसंद होता है तो मुझसे रिजेंबल करते हैं। इस तरह ये लग्जरी, लॉयल्टी, इसको पर्पल हो जाएगा। इसी तरह ब्लैक जो होता है वो डोमिनेंट, ये कह सकते हैं एक एक बोल्ड फीलिंग दिखाने के लिए ना, ब्लैक मोस्टली यूज अक्सर वेबसाइट्स होती है उसमें मोस्टली कलर ब्लैक होता है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस तरह व्हाइट जो होता है वो मोस्टली बैकग्राउंड्स के लिए यूज होता है, या ऐसे ही मतलब कि ये हम नहीं कह सकते से हम ऐसा मेन कलर यूज करते हैं, हमेशा बैकग्राउंड में ब्लैक व्हाइट ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, कलर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक मैं आपको बताया है, जो हम डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक डिज़ाइन है, यकीनन उसमें एक कलर यूज़ नहीं होता, उसमें 2 यूज़ होते हैं या 3 यूज़ होते हैं या 4 होते हैं, या ज़्यादा कलर यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। मतलब जितने भी कलर्स यूज़ होते हैं, इस 2 कलर्स को जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो ये 5 जो है ना चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं कलर हार्मोनी और कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। मतलब कि जब भी हम कोई 2 कलर यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ऑरेंज कलर और ये व्हाइट कलर, ठीक है, ये मैंने यूज़ किया है इस स्लाइड के लिए। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे हार्मोनी है, वो इन 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज़ में से कोई एक मैंने सिलेक्ट किया है। ओके वेट, मैं आपको इसको दिखाती हूँ, यहाँ पर वेबसाइट से मैंने शो करने की, इसको स्लाइड्स में नहीं हो सकता था, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में था। अच्छा ये 7 कह लें या कहीं 5 होती हैं कलर स्कीम्स है, ठीक है। सबसे पहले होती है, मतलब जब कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कोई भी 2 कलर्स अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें सबसे पहले एक स्कीम आप कह लें या फिर आप कह लें कॉम्बिनेशन जो है वो होता है मोनोक्रोमैटिक, उसे हम कहते हैं। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? जब भी आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जब हम एक कोई कलर यूज़ करते हैं, व्हेन डिज़ाइनर यूज़ मोनोक्रोमैटिक स्कीम्स दे कंबाइन डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम कलर, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि लाइक आपने एक येलो कलर लिया, ठीक है, इसी के डिफरेंट शेड्स आपने बना लिए, ठीक है। इसको हम गूगल में अगर हम लिखे ना मोनोक्रोमेटिक, यहाँ पर देखिए, ये देखिए जैसे कि दिस वन, ये एक कलर है बेसिकली ब्लू, इसके डिफरेंट शेड्स हैं, ठीक है, इसे हम शेड्स कहेंगे। ब्लू का डार्क शेड, लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, और ये इस तरह, ठीक है। ये एक मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहलाती है। एक ही कलर बेस होगा, उसके पे डिफरेंट शेड्स होंगे, ये मोनोक्रोमेटिक है। इसी तरह सेकंड पे अगर हम आए, वो है एनालिसिस, ठीक है, इससे हम कहते हैं, ये क्या होता है, ये आपको नजर भी आएगा, जो ये जो भी हम पढ़ेंगे कलर व्हील के ऊपर, मतलब कि हमेशा हम कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। एनालिसिस वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ, मतलब कि करीब करीब, जो सबसे करीब 3 कलर होते हैं, ठीक है। अब ये 3 इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, बस मेन इसका जो लॉजिक है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो, इकट्ठे 3 को किसी भी पूरे व्हील पे आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। कलर इनको हम एनालॉगस कलर्स कहते हैं। अब जैसे कि एक ब्रांड की इन्होंने एग्जांपल दी है, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड का जो लोगो है ना, बेसिकली इन्होंने जो स्कीम चूज की है अपने डिजाइन के लिए, वो एनालॉगस है। लाइक ये 2 कलर्स आप कह सकते हैं, ये देखिए, एक जरा या ये 2 आप कह लें, मतलब कि अब ये तो कलर व्हील है ना, ये जरूरी नहीं है कि यही कलर हो। अगर आप कलर व्हील देखें फिग्मा में, तो ये आपको दिखा देती हूँ। लेट्स से मैंने रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसमें मैं कलर जब करूंगी ना, कलर व्हील तो जरूरी नहीं है कि आपका ऐसे व्हील सा हो। ये देखिए, ये कलर व्हील है, ठीक है, समझिए, ये वो कलर व्हील, इसमें डिफरेंट कलर है, ठीक है। अब इसमें मोनोक्रोमेटिक क्या होगा, लेट्स से ब्लू है, ये ब्लू है, ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसमें ब्लू के अंदर ये वाला, अब इसको मैं डुप्लीकेट करूंगी, अगेन। इसमें अगर आप देखें, इस ब्लू का थोड़ा लाइट, फिर इस ब्लू का, और इसको डिलीट करें, इसी का ले लेते हैं, इसका लाइट, इसका लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक है। ये मेरा डायरेक्ट व्हाइट पर आ गई, लेकिन इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। लाइक 20% का डिफरेंट अगर हम डिफरेंस लेते जाए ना, तो ये बहुत अच्छा एक मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम बनेगी। अच्छा, ये मोनोक्रोमेटिक था, ठीक है। अगर मैं एनालॉगस की बात करूँ, उसमें ये है कि लाइक एक हमने ले लिया, लेट्स से ऑरेंज, ये वाला, ठीक है, और नेक्स्ट हम ले लेंगे इसके साथ वाला, ये, एंड नेक्स्ट हम ले लेंगे, तो मैं अभी रैंडम ले रही हूँ कलर्स का। आप देखिए कोड्स होते हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। ये वाला लेट्स से ये 3 है, ठीक है, ये जो है ये एनालॉगस कलर थीम होगी, मतलब कि 3 कलर व्हील पे एक साथ, ठीक है, और ये मोनोक्रोमेटिक होगी। अच्छा, ये 2 हो गई। इस तरह मतलब कलर स्कीम आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं कलर व्हील पर, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, लाइक पर्पल एंड येलो, इसका आपने हमेशा कॉम्बिनेशन देखा होगा, और ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये होते हैं। और अगर आप डिजाइन में यूज करें ना, तो इनका एक कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये अच्छा भी लगता है, और उसकी जो कंट्रास्ट है ना एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आमने सामने वाले अब ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, ग्रीन एंड रेड भी हो सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा ब्लू एंड ऑरेंज भी होते हैं, ठीक है, वेबसाइट में। जैसे ये देखिए इन्होंने यूज किया हुआ है, ये जो वेबसाइट है ना, इसकी इन्होंने यूज किया हुआ है ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है, ये दोनों अपने ब्रांड के लिए समझे यूज किया हुआ है। और ये 2 क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री कलर्स इन्होंने स्कीम यूज की है, ठीक है। ये इन्होंने कलर हम हारमोनी या कह लें या स्कीम कह लें, ब्लू एंड सॉरी ऑरेंज, सॉरी रेड कह रही थी, ब्लू एंड ऑरेंज, और रेड तो ये पड़ा है, ये इसके सामने नहीं आ रहा, ब्लू एंड ऑरेंज यूज किया, और ये जो है ना इनका एक बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है। इस तरह ये इन्होंने एक दिखाई हुई है
येलो एंड इस वाले की, इन दोनों की एक किसी भी उसका लोगो है, ठीक है। जिसके बाद है ट्राइएडिक, ट्राई नाम से ज़ाहिर है 3 जिसमें मतलब एक ट्रायंगल सा बने, इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब ये कलर और ये कलर, ये 3 कलर इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें 2 आ रहे थे, मोनोक्रोमैटिक में 1 था, कॉम्प्लीमेंट्री में 2 थे, इसमें भी 2 आप कह लें या 3 कह लें, 3 आ रहे थे अगर आप 3 में, इसमें भी 3 है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये आमने सामने वाले 3 है, ठीक है। ट्रायंगल सा बन जाए, इसको हम कहते हैं ट्रायडिक कलर स्कीम, ठीक है। अ, इसमें क्या होता है, जैसे ये यूज़ किया, ठीक है, अगर कोई ऐसा ब्रांड है वो 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा कलर्स यूज़ करना चाह रहा है, तो वो इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है, और जब भी सिलेक्ट करेगा उसकी चीज़ अच्छी बनेगी। अब ज़रूरी नहीं है यही 3 जो दिखाए गए हैं, ये ट्रायंगल इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है, किसी तरह भी, बस जैसे ग्रीन है, ऑरेंज है एंड पर्पल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायडिक कलर स्कीम है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लोगो दिखाया गया है इस तरह, ठीक है। उसके बाद है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ये जो है ना मैंने आई थिंक मैंने अपनी स्लाइड्स में ऐड नहीं किए, ये मोस्टली जो यूज होते हैं ना 5 होते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। मोस्टली जो कलर स्कीम्स जो हैं जो यूज करते हैं वो 5 करते हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ये होते हैं कि ये देखिए, एक तो ट्रायंगल था ना इस तरह, अब ये सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, आमने सामने वाले, इसको हम अगर स्प्लिट कर दें इन दोनों को, मतलब कि बीच में एक छोड़ दें और इस तरह कर दें, तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। अब ये थोड़ी ऐसे हैं कि ये मोस्टली अपने ब्रांड्स में इतने नहीं देखे होंगे, कुछ ब्रांड्स होते हैं वो इसके साथ जाते हैं, जैसे कि ये टाइड वाला है, ठीक है, इन्होंने ये यूज किया स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। इसमें ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इन दोनों के थोड़े थोड़े शेड जो हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि ये एक साइड पे पड़े हैं, देखिए। अच्छा उसके बाद है ये टेट्राडिक, टेट्राडिक में होता है लेकिन ये रेक्टेंगल सा बनता है, ट्रायडिक में ट्रायंगल होता है, इसमें रेक्टेंगल होता है, ये दो और ये दो, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड है आप कौन से कलर व्हील पे कहाँ से लेते हैं, किस जगह से लेते हैं। गूगल सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी। अब गूगल ने जो है ना, इसके देखिए इनके जितने भी कलर्स हैं इन्होंने ये स्कीम यूज की है, ठीक है। ग्रीन, ये ऑरेंज सा, रेड एंड ब्लू, ये देखिए ये परफेक्टली जो है ना इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं गूगल है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्या ब्रांड है, ठीक है ना। अब ये गूगल जो है ये डिफरेंट कलर्स शो करके बहुत कुछ अपने मायने में शो कर रहा है, लाइक ये इस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड है गूगल, कुछ भी मतलब सर्च कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं, तो ये इस चीज को शो कर, इसलिए इन्होंने ज्यादा कलर थीम चूज की है इसमें। अच्छा स्केयर है, इसके बाद ये स्केयर वैसे बेसिकली इतना यूज नहीं होता, सबसे एंड में जो है दिया हुआ स्केयर, इसमें बस वही है कि कलर व्हील पे स्केयर सा बनता है, देखिए। मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं ना वो मोनोक्रोमेटिक है, ये वाला, एंड देन एनालॉगस और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये 3 कलर स्कीम जो है सबसे बेस्ट रहती हैं और हमेशा यूज की जाती हैं। अच्छा मेरे पास ये वेबसाइट जैसे ओपन है, इस पे हम चेक कर लेते हैं, और लेट्स से कहते हैं लैंडिंग पेज कोई भी ओपन हो जाए, जरा कलर स्कीम चेक करते हैं, ठीक है, इन्होंने कैसे यूज की हुई है। अच्छा ये वाला देखिए ना, इसमें आप बता सकते हैं कि मेनली जो कलर स्कीम इन्होंने यूज की है वो कौन सी है, कमेंट में बता दें अगर कोई। ये वेबसाइट है, ठीक है, फिन पे में भी, ये कोई फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड है या बैंकिंग की वेबसाइट है, इसमें कौन सी कलर स्कीम यूज की गई है, कोई कमेंट में अगर बता सके तो समझ आ रही है। डायाडिक, डायाडिक तुमने कोई नहीं पढ़ी, कोई और बता दे, कोई एक बता दे ये कौन सी कलर स्कीम यूज की गई है। ये देखिए, अगर आप इसके शेड्स देखें आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सी कलर स्कीम यूज है। चलो मैं बता देती हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा अभी इसके शेड्स देखिए ना, अगर आप
तो ये देखिए ये एक ग्रीन है, इसकी बैकग्राउंड पे देखिए लाइट सा ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है। देन ये इसके जो कार्ड्स बने हैं उस पे भी एक ग्रीन सा शेड आ रहा है, इसकी टेक्स्ट में भी ग्रीन है, या इस नेविगेशन में ग्रीन है। तो ये कौन सी कलर स्कीम होगी? ये होगी मोनोक्रोमेटिक। हाँ, टू कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको हम, अच्छा इसमें जो व्हाइट कलर होता है ना, हाँ मोनोक्रोमेटिक बिल्कुल। व्हाइट कलर जो होता है ना उसको हम मोस्टली जो है काउंट नहीं करते। जैसे कि अब ये वेबसाइट देखें ना, व्हाइट कलर हमेशा बैकग्राउंड के लिए यूज होता है। इसी तरह जो ब्लैक कलर है टेक्स्ट का, इसको भी हम काउंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये, इनको हम ये नहीं कह सकते ये हमने कलर स्कीम चूज की है, क्योंकि ये टेक्स्ट तो ब्लैक ही होगा ना यकीनन। अगर हम व्हाइट बैकग्राउंड चूज कर रहे हैं उस पर हम व्हाइट टेक्स्ट तो नहीं ऐड कर सकते, या हम ये तो नहीं कर सकते कि हमने ऑरेंज एंड ब्लू अगर कलर स्कीम चूज की है तो हमारा सारा टेक्स्ट भी ऑरेंज एंड ब्लू में होगा। ये जो दो कलर है ये हमारी ब्रांड कलर्स हैं, ठीक है। व्हाइट तो हमेशा बैकग्राउंड में होगा, या डार्क बैकग्राउंड होगा तो ब्लैक होगा, उस पर व्हाइट टेक्स्ट होगा। तो इस तरह ये जो वेबसाइट है ना, इसमें व्हाइट को आप इग्नोर करें, इसमें कलर स्कीम आप देखें जो मोस्टली शेड्स आ रहे हैं ना, इसको हम पास करके देखते हैं। ये देखिए ये ग्रीन, इस कार्ड का ग्रीन, ये ग्रीन इसके लोगो में किस डार्क ग्रीन सा है, बैकग्राउंड में ग्रीन का एक वो दिया हुआ है बहुत हल्का सा पेस्टल करके। तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम है, ठीक है। एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स यूज किए गए, इसमें रेड ब्लू येलो या ऐसा कोई भी नहीं है। तो एक एग्जांपल दी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हो गया कलर कॉम्बिनेशन और यू कैन से कलर हार्मोनी। ओके, अच्छा इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अब ये तीन चीजें हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि हर वक्त एक कलर यूज, मतलब कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं उसमें व्हाइट एंड ब्लैक हम कंसिडर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम कलर्स को थ्री चीजों पे डिवाइड करते हैं। एक हमारा मेन कलर होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर क्या होता है? दिस इज द डोमिनेंट कलर ऑफ द डिजाइन, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द कलर स्कीम एंड कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ द डिजाइन, ठीक है। मेजॉरिटी जो डिजाइन होती है वो 60% मतलब कह ली, वो हमारा प्राइमरी कलर होता है। देन हमारा आता है सेकेंडरी कलर। जब हम दो प्राइमरी कलर, लेट्स से आपका प्राइमरी कलर है ऑरेंज, ठीक है, और आपका सेकेंडरी कलर है लेट्स से जैसे इनका था ब्लू, तो इसको हम कहेंगे हमारा जो सेकेंडरी कलर है, मतलब कि ज्यादा यूज होगा ऑरेंज और उससे कम थोड़ा यूज होगा सेकेंडरी कलर, ठीक है। ये सपोर्ट करता है द डोमिनेंट कलर विच इज प्राइमरी कलर। तो इसको हम कहेंगे 30% यूज होता है, ठीक है। ये होता है 60%, ये 30%, एंड देन एक्सेंट कलर जो होता है वो हमारा 10% यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है? CTAs में मोस्टली आपने देखा होगा। CTA मतलब कि जो बटन होते हैं, जो बटन में कलर यूज होता है उसको हम एक्सेंट कलर कहते हैं, और ये थोड़ा वाइब्रेंट सा होता है। ये होता 10%, पूरे ओवरऑल डिजाइन में सिर्फ 10% यूज होता है। लेकिन हम ये ऐसा कलर चूज करना होता है कि यूजर की नजर जो है ना वो इस पर फौरन जाए, क्योंकि बटन क्लिक करना हमारा गोल होता है किसी भी वेबसाइट या ऐप पर। तो इस तरह हम मतलब कि कलर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा मेन जो 30% होगा, सॉरी 60%, देन 30% एंड देन ये 10%। मैं आपको इसे एग्जांपल दिखाती हूँ। और ये अगेन लिखा हुआ है 60-30-10 रूल। ये जो एक रूल है डिजाइनर्स के लिए बनाया गया है, इसको हम हमेशा फॉलो करते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। ये क्या होता है कि एक जो डोमिनेंट कलर होता है 60% होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कलर जो होता है वो 30% होता है, एंड देन 10% ये होता है। अच्छा ये 60% बैकग्राउंड्स वाला भी आप कह सकते हैं। जो 60% बहुत ज्यादा, जिस इस स्लाइड पर जो डोमिनेंट कलर होगा वो ऑरेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आई गेस होगा वाइट या फिर ब्लैक जो होगा उसके बाद होगा, या फिर वाइट सॉरी ब्लैक जो है वो 30% है, और ये जो है वाइट ये थोड़ा सा है 10%, एक्सेंट कलर इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक कलर का जो है ना रोल है, रोल फॉर कलर जिसे आप कह सकते हैं। ये डिजाइनर्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो UI/UX डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो। बेसिकली कलर्स को यूज करने का अब ये हम नहीं कर सकते कि सारा जो है ना डिजाइन है वो एक ही कलर में हो, उसका कोई कंट्रास्ट ही नहीं बनेगा हमेशा। मतलब कलर्स को हमने डिवाइड करना होता है हिस्सों में, ठीक है। इसके एग्जांपल हाँ ये मैंने ऐड की थी। इसमें क्या है कि ये देखिए 60-30-10 UI रूल यहाँ यूज हुआ। ये एक मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। इसमें क्या है
ये वाला कलर जो है ये हमारा 60% है, डोमिनेंट है। देन हमारा ये वाला कलर है 30%, कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेंट कलर भी होता है यहाँ पर, डोमिनेंट, कॉम्प्लीमेंट और एक्सेंट कलर दिया हुआ है। डजेंट मैटर, आप कोई भी से नाम दे सकते हैं। और ये जो बटन के लिए यूज होता है ये हमारा एक्सेंट कलर है, ठीक है। ये नॉर्मल एक रूल है, इसको अगर हम फॉलो करें ना, अच्छा मस्ट नहीं है कि आपने जरूर ये रूल फॉलो करना है, लेकिन अगर इसको फॉलो करें तो आपके डिजाइन में जो कलर्स है ना वो बहुत अच्छी तरह मतलब कि अरेंज होंगे इस रूल के थ्रू, 60-30-10 रूल। अच्छा एक और भी एग्जांपल थी ये वाली, इसमें देखिए अब ये क्या है, प्राइमरी या कह लें डोमिनेंट कलर, डोमिनेंट ये हो जाएगा हमारा दूसरा ये वाला, सेकेंडरी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड द थर्ड हमेशा वाइब्रेंट सा होता है, आंखों में चुभने वाला एक्सेंट कलर, ताकि इस सारे कलर्स पर हमारी नजर इस पर जरूर जाए, ठीक है। क्योंकि ये बटन है, इसको हमने क्लिक करना है। अगर ये हम इस तरह डल सा मतलब कि इसका कोई एक शेड रख देते तो हमें नजर ही ना आता यूजर को कि ये बटन है, इसे क्लिक करना है। तो ये एक्सेंट कलर हमेशा एक वाइब्रेंट कलर होता है, ठीक है। इस कलर शेड के ऊपर अगर हम येलो यूज करते हैं तो भी ये नजर आता हमें। ओके, अच्छा अच्छा ये हो गई। अब तक मैंने आपको बता दिया कलर की कलर स्कीम्स कौन सी होती हैं, उसके बाद 60-30-10 रूल क्या होता है। अभी जब एक कलर व्हील के अंदर जब हम कलर्स को लेते हैं तो उसमें 3 हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या आता है, ह्यू, सैचुरेशन, कंट्रास्ट और ल्यूमिनेस, ल्यूमिनेस भी से कहते हैं, ठीक है। अच्छा ह्यू क्या होता है, लाइक ह्यू इज बेसिकली एनी कलर ऑन द कलर व्हील, कोई भी कलर व्हील के ऊपर कोई भी आप कलर ले लें, ठीक है। जैसे कि रेड कलर, प्योर रेड, इसको हम ह्यू कहेंगे। व्हेन यू आर यूजिंग अ कलर व्हील और अ कलर पिकर, यू कैन एडजस्ट द सैचुरेशन एंड लुमिनेंस ऑफ अ ह्यू, ठीक है। इस चीज की आपको समझ आई है। जब आप कलर व्हील के या कोई कलर पिक करते हैं, ठीक है, और उस कलर, इस लेट्स ये रेड कलर है ना, इस रेड कलर की सैचुरेशन होगी जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, या इस रेड कलर का कंट्रास्ट होगा जिसको आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। ह्यू जो है वो बेसिकली मेन कलर होगा, ठीक है, मेन कलर होगा। इसके अंदर पे ये 2 टर्म्स आती हैं, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी, ठीक है। सैचुरेशन क्या होती है, ये सैचुरेशन होगी ह्यू की, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी और प्योरिटी। मतलब कि रेड कलर है, इसके अंदर इसकी सैचुरेशन आप बढ़ाते जाएं, ठीक है, बढ़ाते जाएं तो इसकी इंटेंसिटी जो है ना, शार्पनेस, वो इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर कंट्रास्ट को देखें, इसको अगर आप बढ़ाते जाए ना तो इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, मतलब कि ये इसमें वाइट ऐड होता जाएगा, इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा यहाँ पर मैंने कलर प्लगइन का लिखा हुआ है कलर कंपास, इससे ये जो है ना आप ये बना बनाया आपको ह्यू, सैचुरेशन एंड कंट्रास्ट मिल जाएगा। लेट मी चेक नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा वैसे बहुत डिटेल में मैंने लिखा, चलो मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वहाँ पर देख रहे थे ये वाला, लेट्स से एक कलर है ये ब्लू, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ये एक प्योर कलर है, ठीक है, ये क्या है, ह्यू है, ह्यू इसे हम कहेंगे। ये कलर व्हील पे कोई भी कलर है, ये ह्यू है, ठीक है। अब इसकी इसका जो है ना सैचुरेशन कैसे बनेगी वो हम बनाएंगे, और इसका कंट्रास्ट कैसे बनेगा। ये एक्सक्यूज ह्यू है। मी मैम, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा स्क्रीन शो ना हो तो मुझे बता देना, कभी कभी हो जाता है। अच्छा ये ह्यू है, मैं आपको ये बता रही थी, ये मेन कलर है कलर व्हील पर, ये देखिए। ये इसकी सैचुरेशन हम बनाएंगे, यहाँ पर हम इसका बनाएंगे कंट्रास्ट, ठीक है। ह्यू जो है ये कलर हो गया। अब ये देखिए ये मेन कलर, इसके अंदर मैं यहाँ प्लस करूंगी, और ये ब्लैक कलर है ना, देखिए इसका क्या नहीं, मैं 10% ले लूंगी, ये 20 सही है, 10 तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। इस तरह इसको मैं डुप्लीकेट करूंगी, इसके अंदर जो मैंने अभी 10% ऐड किया था, अब इसके अंदर फिर सॉरी 20 ऐड किया था, अब इसके अंदर मैं 20 और ऐड करूंगी। इस तरह मैं इस 40 के अंदर 20 और ऐड करूंगी।
18 मतलब कि अब मैं खुद 20 का डिफरेंस ले रही हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने का लेते हैं। 5 का भी ले सकते हैं आप, 10 का भी ले सकते हैं। अब ये जो शेड्स बनी है ना, ये देखिए, ये हम कह सकते हैं कि ये इसकी सैचुरेशन है। अब अगेन मैं अगर यहाँ देखूं, ये मेन कलर हो गया, इसके अंदर मैं व्हाइट ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। कंट्रास्ट बनाने के लिए हमेशा हम, ये ब्लैक है ना, 000 कोड देखिए ब्लैक है, मैं व्हाइट ऐड करूंगी, FFF, ये जो इसका हेक्स कोड होता है ना, व्हाइट, ठीक है। पहले 20 ऐड किया, डुप्लीकेट करूंगी, इसके अंदर 20 और ऐड करूंगी, इस तरह करके ना ये जो शेड्स बन रहे हैं ना, अब ये मैनुअली मैं बना रही हूँ, वहाँ मैंने प्लगइन लिखा हुआ था फिग्मा का जैसे, उस पर हम यूज़ करें तो खुद ये सारे शेड्स बना देते हैं, ठीक है। अभी मैंने मैनुअली इसे बनाया। ये मेन कलर हो गया ह्यू, सैचुरेशन, और ये हो गया कंट्रास्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं कलर की, जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं उसके अंदर हम 3 टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम कलर को, लेट से आपने कोई एक कलर चूज किया, या मोनोक्रोमेटिक कलर है, जो भी है कम्प्लीमेंट्री, आपने कोई एक कलर स्कीम यूज की है, उसके अंदर आप ह्यू, सैचुरेशन और कंट्रास्ट को इस तरह बना सकते हैं, आप कह सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया एक। देन नेक्स्ट, सो ये एक चीज है, चेक करूं कितनी स्लाइड्स रहती हैं। ओके, सही है। अच्छा, ये एक चीज है, इसके बाद एक जैसे ह्यू, सैचुरेशन एंड कंट्रास्ट होता है, इस तरह 3 और चीजें भी होती हैं एक कलर के अंदर, ठीक है। एक स्पेसिफिक कलर शेड के अंदर, शेड होता है, टिंट होता है, और टोन्स होते हैं, ठीक है। अब शेड क्या होता है, आप ऑलरेडी अभी आपको दिखा चुकी हूँ कि आप किसी भी कलर के अंदर ब्लैक ऐड करते जाएंगे ना, लाइक 10% या जितने परसेंट भी आपको जरूरत है, तो जो जो एक कलर का कॉम्बिनेशन कह लें, या एक सीक्वेंस बनेगा ना, उसको हम शेड कहते हैं। हम कहते हैं ना, ये रेड, जब हम कपड़े लेते हैं कुछ करते हैं तो हम कहते हैं ये रेड कलर के शेड्स हैं, ठीक है। अलग से गर्ल्स अक्सर जब कलर वो करती हैं तो वो शेड्स देखती हैं, ठीक है। तो रेड कलर है एक मेन, ये उसका कोई एक शेड है। अब इसका शेड का यकीनन प्रॉपर नाम नहीं होता, बस हम ये कहते हैं कि ये रेड कलर का शेड है, ठीक है। शेड क्या होता है कि उसमें जब हम थोड़ा ये तो हम वैसे नॉर्मली कहते हैं, लेकिन प्रॉपर शेड कैसे बनता है, जब किसी कलर के अंदर हम ब्लैक को मिक्स करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कलर शेड। इस तरह टिंट होता है, ठीक है। ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इसकी, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये सब पढ़ लें। A tint is created by adding white to a base hue, lightening the color, जो अभी हम कर चुके हैं। टिंट क्या होता है, बेस जो कलर होता है ह्यू, उसके अंदर का व्हाइट आप ऐड करते जाए ना, तो ये टिंट बनता है, ठीक है। टिंट एक बेस है, इसके अंदर व्हाइट आप थोड़ा करके ऐड करते जाए। दिस कैन मेक अ कलर लेस इंटेंस एंड इज यूजफुल इन बैलेंसिंग मोर विविड कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये कब यूज होता है, इसका क्या मतलब है कि जब आपको एक कलर स्कीम दी गई है, आपको ब्रांड कलर दिया गया है, लेट्स से रेड, ठीक है, रेड। अब ये तो नहीं हो सकता कि ऐसे अभी मेरी वेबसाइट में आपको दिखाई है रेफरेंस वाली, कि उसके सारे बैकग्राउंड पे मैं ये इतना डार्क सा रेड यूज कर दूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका टिंट बनाऊंगी, ठीक है। टिंट मतलब कि उसमें व्हाइट मैं ऐड करूंगी, मतलब टिंट्स के आप जितने परसेंट ऐड करना चाहूँगा उसके टिंट बनाकर, उसमें जो आई गेस जो सबसे लाइट होगा ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा परसेंट मैंने व्हाइट ऐड किया होगा, उसको मैं बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर दूंगी किसी भी वेबसाइट के, ठीक है। और ये मतलब कि ये एक मोनोक्रोमेटिक कलर थीम ही हो गई, अगर हम उसमें देखें कैटेगरीज में। फिर इसके ऊपर मैं आराम से टेक्स्ट लिख सकती हूँ, वो नजर आएगा। इसके बरक्स अगर मैं पूरा रेड कर दूं, पूरा ब्रांड कलर यूज कर दूं, उस पर टेक्स्ट लगाओ, बहुत ही आंखों को चुभेगा, बिल्कुल ही एक सही जो है ना, आप कहने प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या ये यही लिखा हुआ कि आपको बहुत ऐसी कलर कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट ने दिया है कि रेड आपने यूज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी वेबसाइट में रेड ही यूज कर दें पूरे बैकग्राउंड में, आप उसके टिंट्स बना लें या आप उसके शेड्स बना लें, ठीक है। इस तरह ये डार्क कलर भी बैकग्राउंड में यूज हो सकता है, ठीक है। शेड्स बनाने में इसमें ब्लैक ऐड कर दें, या टिंट बनाने इसमें व्हाइट ऐड कर दें, ठीक है। तो ये एक तरीका है शेड्स या टिंट्स बनाने का। इसके बाद टोन्स आती हैं। टोन्स क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे विद अ बेस ह्यू। अब क्या है, नाम से जाहिर है इसमें दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। जब आप एक कलर लें रेड, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी फिग्मा में, आपने एक रेड कलर लिया, इसके अंदर आपने
10% जो है वाइट ये ऐड कर दिया ब्लैक 000 इसका कोड होता है एंड 10% आपने ऐड कर दिया वाइट FFF जिसका कोड होता है, ठीक है, हेक्सा कोड। तो जब जो वो कलर बनेगा ना उसको हम कहेंगे टोन, ठीक है, ये इसकी टोन है, ये देखिए ये नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा ग्रेइश में जाता है क्योंकि यकीनन जब एक अगर आप सिंपल फिजिकली पेंट्स को देखिए ना, पेंट में जैसे बच्चे पेंट करते हैं, अगर उसके अंदर भी ये सब कुछ आप अप्लाई करें ना तो वो सही यही चीजें ही बनती हैं प्रैक्टिकली। अगर आप रेड के अंदर थोड़ा सा ब्लैक एंड थोड़ा सा व्हाइट ऐड करें ना तो वो ग्रे बनेगा हमेशा। इस तरह अगर आप यकीनन रेड के अंदर थोड़े से की बात हो रही है, बहुत ज्यादा ऐड करेंगे तो यकीनन डायरेक्ट ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ब्लैक ऐड करें तो वो इस तरह मरून सा बनेगा, फिर थोड़ा और ऐड करें तो इस तरह, ठीक है, ये आपको पता होगा। ये जब हम प्रैक्टिकली भी करते हैं तो यकीनन ये कलर्स हैं, तो कलर्स हमेशा हर चीज़ में, चाहे वो हम डिजिटली कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, या हम खुद अपने हाथों से कलर्स को कर रहे हैं, वो एक ही होता है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कलर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब आप पर है कि एक डिज़ाइनर, एज अ डिज़ाइनर जब आप कलर चूज कर रहे हैं तो आप किन स्टेप्स को, कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं और एक ब्रांड के लिए, एक वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए अपने कलर चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली होती है रिसर्च, ठीक है। कोई चीज़ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, डिज़ाइन, आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च मतलब कि किस चीज़ की, कलर्स में क्या रिसर्च होगी, आपने हमेशा ये रिसर्च करनी है कि लाइक लेट्स से आपका कोई हर्ब्स का ब्रांड है, ठीक है, उसके लिए आप कलर चूज करें, तो पहले आप ये रिसर्च करेंगे कि इस टाइप के ब्रांड्स के लिए कौन से कलर्स यूज होते हैं, इस कलर का मीनिंग क्या है, ठीक है। कि लाइक अगर आप हर्ब्स के लिए कर रहे हैं, हर्ब्स की कोई वेबसाइट्स है आपकी, तो आप देखेंगे अब हर्ब्स जस्ट लिखेंगे गूगल पर या फिर हर्ब्स कलर लिखेंगे, वो आप वैसे ही नजर आ जाएगा कि इसमें कौन से शेड्स हैं, ठीक है, कौन से शेड्स आ रहे हैं, ऐसे करके भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ना, व्हाट इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर यू ट्राइंग टू evoke व्हेन अ यूजर ब्राउजेस योर ऐप, ठीक है। व्हाट एक्शन डू यू वांट टू एनकरेज योर यूजर्स टू टेक, ठीक है। ये हर चीज रिसर्च पर आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, an app promoting relaxation might choose calming shades like blues and greens, while a website selling children toys might opt for bright and playful colors like yellow and pinks. ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप कोई चिल्ड्रंस की से रिलेटेड प्रोडक्ट देखेंगे ना, उसमें हमेशा लाइट कलर यूज होते हैं, येलो, लाइट ब्लू, पिंक या बेबी पिंक, इस टाइप के कलर, ठीक है। और अगर आप कोई रिलैक्सेशन मतलब कि कोई ऐसे थेरेपी टाइप वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है ना ग्रीन होता है, मोस्टली ब्लू होता है, ये कलर्स होते हैं। तो मतलब आपने सबसे पहला स्टेप किया, आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अच्छा स्टेप 2 ये है कंसिडर कलर मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कलर मीनिंग्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको अपने माइंड में हमेशा रखना है। ये अगेन वही बातें लिखी हुई है सारी कि रेड किस लिए होता है, ब्लू किस लिए होता है, ठीक है। तो आपने कलर साइकोलॉजी वाला जो रूल है उसको भी हमेशा माइंड में रखना है कि अगर आपकी वेबसाइट फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप पिंक की तरफ जाएं तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप पिंक ही चूज करें, आप ये डिपेंड करता है आपके ब्रांड कलर्स क्या है। अगर ऑलरेडी क्लाइंट ने आपको दिए हैं तो आप उसके साथ जाएंगे, अगर आप चूज करें तो आप पिंक यूज कर लें। अगर वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई क्रीम है या कोई फेस वॉश है या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इसके अलावा स्टेप 2 था। स्टेप 3 हमारा वही 60-30 रूल जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 60-30 रूल ये है, इसको आपने फॉलो करना है। अब इसमें आप देख लें, अच्छा कोई बता दे इसमें कैसे कैसे यूज हो। इसमें जो डार्क कलर है, ये आई थिंक ये ब्लू, डार्क ब्लू है, ठीक है, डार्क ब्लू है, ये कितने % है, ऑरेंज है एंड देन लाइट ब्लू है, ये बता सकता है। अच्छा, मुझे फिर बैक जाना पड़ेगा, चलो मैं खुद ही बता देती हूँ, स्क्रीन को छोटा कर। इसमें ये देखिए, यकीनन जो ज्यादा है वो 60% है। इसके बाद हमारा आई गेस ये आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ये लाइट ब्लू, ये देखिए ये आइकन्स में यूज हुआ है, ग्राफ में यूज हुआ है, ये हो जाएगा हमारा 30%, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा ऑरेंज,
जो हमारा वाइब्रेंट है, जो हमारी आँखों को थोड़ा लग रहा है, जो वाइब्रेंट मतलब कि जो ऐसा कलर जो थोड़ी प्रायोरिटी जिस चीज़ की होती है ना उसके लिए हम शो करते हैं। ये कितना होगा 10%। ये क्यों 10% होता है? यकीनन वही बात है कि जो चीज़ जैसे इंसानों में भी ये है कि हम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये एक फिज़िकली एक आप कह लें साइकोलॉजी है। इस तरह अगर आप ऑरेंज हर जगह यूज़ करते ना तो जो मेन चीज़ अपनी अगर यूज़ करते तो वो नज़र इतना प्रोमिनेंट ना होता। इसलिए हम एक्सेंट कलर जो होता है ना जो 10% हम यूज़ करते हैं इसको हम थोड़ा-थोड़ा यूज़ करते हैं ताकि वो जहाँ हो वो सबसे अलग नज़र आए। ओके, अच्छा ये स्लाइड्स यहाँ तक थी। मैं आपको अभी क्या दिखाना था? अच्छा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि लाइक अगर हम रिसर्च करेंगे तो हम कैसे करेंगे? मैं आपको ये दिखा देती हूँ। लेट्स सी कौन सी वेबसाइट मैंने लिखा? इमेजेस में आते हैं, फिर हम देखते हैं कि कलर्स क्या यूज़ होता है। अब ये देखिए जैसे मैं आपको कह रही थी ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन हर एक ने ग्रीन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ग्रीन के डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही शेड हो स्ट्रिक्टली। अब ग्रीन क्यों यूज़ किया हुआ है? यकीनन हर्ब्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं हर्ब्स किसे कहते हैं कि लाइक जड़ी-बूटी जिसे हम कहते हैं लाइक ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं या जो भी होते हैं, इनके नाम मुझे नहीं आते। इसमें जो है ना ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसलिए हम हमेशा हर्ब्स की जो वेबसाइट है उसमें ब्रांड में हम ग्रीन ही यूज़ करते हैं। एक मिनट यहाँ से भी देख लेते हैं। अच्छा एक हमने ये चूज़ कर लिया, लेट्स से हमने ये कलर चूज़ किया जैसे वेबसाइट लेट्स से ये मैंने ओपन की। ठीक है, ये हर्ब्स की वेबसाइट है। इसमें आप अगर हम देखें इस वेबसाइट में और इसमें इतना वो शो नहीं हो रहा था इतने से ये इमेज, तो इसमें अगर आप देखिए 60% व्हाइट कलर है, देन 30% ये ग्रीन है और मे बी 10% ये ब्लैक यूज़ किया गया है बटन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल भी अप्लाई हुआ है और अगेन अगर हम ये देखें इसमें अगर ग्रीन के सारे शेड्स यूज़ हुए हैं तो ये स्कीम कौन-सी है? ये मोनोक्रोमैटिक स्कीम है कलर की। जैसे कि इस वेबसाइट पर देखें, सो कुछ और सर्च करते हैं, लेट्स से अगर हम सर्च करें किड्स क्लॉथिंग। सो ये देखिए किड्स है तो यकीनन जैसे मैंने आपको बताया किड्स की कोई भी चीज़ है वेबसाइट अगर हम देखें तो उसमें मतलब कि रैंडम कलर यूज़ हो रहे हैं। देखिए जैसे ये किड्स की है, ठीक है? इसके फ़ॉन्ट्स भी आप देख लें, फ़ॉन्ट से भी तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट्स भी डिपेंड करते हैं कि आप किस ब्रांड के लिए कर रहे हैं। इस तरह कलर्स को देखिए कि लाइट से डिफरेंट कलर, 1 से ज़्यादा, 2 से 3 से ज़्यादा कलर्स यूज़ हुए हैं कि वो ज़रा कहते हैं ना कि किड्स की आँखों को ज़रा अट्रैक्टिव लगे, वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। और ये देखें ये एक एडल्ट्स सब कह रहे हैं उनकी वेबसाइट है, इसमें स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज़ हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, इसमें इतने हरे-भरे कलर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये किड्स की नहीं है, ये मेन प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है, ठीक है? अगेन ये भी देखिए किड्स की है तो इसमें भी ये वेबसाइट किसी चीज़ की भी ज़रूरी नहीं है, टॉयज़ की हो, ये लर्निंग की है आई गेट्स या अच्छा बर्थडे इन्विटेशन की है वेबसाइट। अगर किड्स लर्निंग की आप देखिए प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं उनकी भी ऐसे मल्टी कलर्स मोस्टली यूज़ होते हैं। ये जैसे ये है किड्स लर्निंग की है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, इसमें मुझे सोचने दें मैंने कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अच्छा कलर ऐड करने का तरीका तो यकीनन आपको आता होगा ना, ये फिग्मा में जो इतना कलर्स का पड़ा है तो कलर ऐड कहाँ से होते हैं? वो यहाँ से होते हैं, ये फिल वाला, ठीक है? अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन चूज़ करना है ये आप पर है, कलर कोड ये इसको हम कलर कोड कहते हैं, ठीक है? ये इसकी ओपेसिटी हो गई और सिंपल फिल में जो हम ऐड करते हैं वो इसका कलर होता है। अच्छा इसमें और कोई चीज़ आई थिंक सब चीज़ हम कवर कर लेंगे। Yeah, exactly because just a based color black and white. कोई क्वेश्चन है आपका कर लें, देन चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मिलते हैं और इसको हम
मज़ीद आगे लेकर जाएँगे। आज हमने कलर्स का पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस हमारा वो है लॉज़ के बारे में है। यूआई के लॉज़ क्या हैं, किन-किन लॉ पर अमल करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अब किसी चीज़ की समझ नहीं आई। Ma'am, we have some questions in the chat box. ओह सॉरी, मैंने स्क्रॉल नहीं किया, मैं ऊपर उठा रही थी जब। मोहम्मद हसनैन कह रही हैं मैम लास्ट क्लास व्हेन आई आस्क्ड फॉर योर रिव्यू ऑन माय क्लाइंट यू मेंशन। आप शेयर कर दें जल्दी से हसनैन, तो हम चेक कर लेंगे। अच्छा, सफीना कह रही है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री टेट्राडिक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वही मैंने आपको बताया है ना। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ये पढ़ा है, ये जो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, आमने सामने। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला था। इसमें डिफरेंस देखिए आपको समझ आएगी। ट्रायडिक की आई थिंक आप बात कर रही हैं। ट्रायडिक वो होता है जिसमें ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल ये देखिए हमेशा इस तरह बनता है, चाहे आप कलर व्हील में कहीं भी लें। एक ये कलर होगा, ये 3 आप कह लें ब्लॉक्स ये छोड़कर, शेड्स छोड़कर, ये वाला इस तरह, ठीक है। ये ट्रायडिक कलर मतलब ट्राई मतलब 3। इस तरह अगर आप स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री को देखें ना, इसमें देखिए डिफरेंस कितना आ रहा था, 3 का, 3 ब्लॉक्स का, या आप कहने 3 जो है ना कलर्स का जो है डिफरेंस आ रहा है इसमें। इसमें आप देखें स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में तो जस्ट 1 का आ रहा है। तो इसमें मोस्टली जब कलर बनते हैं ना स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में, एक तो बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि वो उनका अपोजिट साइड पर होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप कह लें। लेकिन जो 2 बनते हैं ना इसमें, जो हम शेड्स हमारे पास आते हैं, आप कह लें कलर के ह्यू आते हैं या कोई भी वर्ड ले लें, वो थोड़े रिजेंबल करते हैं क्योंकि उनमें जस्ट एक ब्लॉक का फर्क आ रहा है, थोड़े से करीब होते हैं वो, ठीक है। जबकि इसमें अगर आप देखें ना, इसमें देखिए 3 का फर्क आ रहा है, इक्वल फर्क आ रहा है तीनों में। तो इसके यकीनन कलर शेड्स जो है थोड़े डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। समझ आइए आपको? तो एक मिनट इनका डिजाइन चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये लोड होने में टाइम ले रही है। आई गेस आपने वेबसाइट बनाई हुई है, ये लाइव है ना? ये किस प्लेटफॉर्म पे आपने बनाई है? इसकी लोडिंग टाइम बहुत स्लो है। वेबसाइट जब भी आप कोई डिज़ाइन के बाद डेवलप करते हैं ना, तो उसका लोड टाइम बहुत मैटर करता है। कोई ऐसी वेबसाइट जो मोर देन 3 सेकंड या 4 सेकंड्स भी ले ना, तो कोई भी यूज़र है वो उसे छोड़ कर चला जाएगा। मोस्टली ये होता है क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो मतलब वेट नहीं करते। अगर कोई वेबसाइट वेट अ सेकंड, किसकी आवाज़ है? अच्छा, ये हमारी क्या थी कि अगर लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा तो कोई वेट नहीं करेगा, यूज़र आपकी वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा। खैर, अच्छा वेबसाइट आपने ये बनाई है। अच्छा हसनैन, आपने ये डिज़ाइन की है या डायरेक्ट डेवलप की है, मुझे आप ये बताएं। क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं लास्ट क्लास फर्स्ट प्रोजेक्ट इन माय पोर्टफोलियो, ठीक है, डायरेक्ट डेवलप किया है। ये देखिए ना, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं ना, आपको यकीनन यूआई एंड यूएक्स का और डेवलपमेंट का फर्क पता होगा। जब हम ठीक है, ये मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं इसको डिज़ाइन वाइज आपको जज करके बताती हूँ, ठीक है। इनका डेवलपमेंट बाद की बात है। जब हम एक चीज़ को पहले डिज़ाइन करते हैं उसके लिए हम फिग्मा यूज़ करते हैं। फिग्मा में कोड भी होता है, कोडिंग होती है फिग्मा में, ठीक है, इसका एक फिग्मा का ऑप्शन है। लेकिन जो फर्स्टली जो मोस्टली प्रायोरिटी पर फिग्मा सॉफ्टवेयर या टूल यूज़ होता है ना, वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद पहले डिज़ाइन जब हो जाता है, क्लाइंट को दिखाते हैं, वो अप्रूव करता है। मतलब कि जब जब मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से अगर मैं क्लाइंट को कहती हूँ कि ये आपका प्रोजेक्ट है, मैं इसको डिज़ाइन भी करूँगी और डेवलप भी करूँगी,
तो यकीनन मैं ये नहीं करूँगी मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट में इस फेज में चली जाऊँ, उसमें हर चीज़ बना लूँ, क्लाइंट का मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो डेवलपमेंट में टाइम लगता है, जबकि डिज़ाइनिंग है वो ईजी है। जब आप डिज़ाइन करते हैं, आप कोई भी चीज़ वेबसाइट पर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं अलग से, तो आप उसको ईजिली जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। अलग से अगर आपको एक कलर चेंज करना है, आप यहाँ पर सिंपल चेंज करना है। डेवलपमेंट में अगर आप वर्डप्रेस में बना रहे हैं, किसी टूल में, वेबफ्लो में बना रहे हैं, या आप कस्टम कोड कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेस करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही थी, कहाँ गई आपकी वेबसाइट, ये वाली। अच्छा, अगर डेवलपमेंट को छोड़ के ना, डेवलपमेंट का मैं आपको बता रही थी, डिज़ाइनिंग के लिहाज से इसे जज करें, तो फर्स्ट सबसे पहली जो आपने मिस्टेक की हुई है, अच्छा आप माइंड मत करना, मैं आपको मिस्टेक बताऊंगी ताकि आपको सीखने का मौका मिले। अच्छा, कोई बता सकता है वैसे आप में से इसमें क्या मिस्टेक है, इस हीरो सेक्शन में, इस पहले सेक्शन में डिजाइनिंग की कोई मिस्टेक बता सकता है? अगर कोई बताना चाहे, वरना मैं ही बता देती हूँ। चलो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। सबसे पहले लेट्स से मैं इधर आई हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट पे विजिट किया है मैंने। अभी देखिए मोहम्मद हसनैन अली, ये सबसे मेन चीज़ है, ये इनकी वेबसाइट है, इनका नाम है। इसकी रेडिबिलिटी कम है, मतलब ये मुझे, अगर चले मेरी तो आई साइड ठीक है, आप कह रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, कोई ऐसा बंदा इसकी आई साइड थोड़ी वीक है, उसको ये नज़र इतना आसानी से नहीं आएगा। क्यों? इसके फॉन्ट्स तो बड़े हैं, ठीक है, लेकिन इसका कलर कंट्रास्ट सही नहीं है बैकग्राउंड के साथ। बैकग्राउंड ग्रेश है और इन्होंने यूज़ किए हैं वाइट कलर उसके ऊपर। ग्रे के ऊपर वाइट हम कभी भी यूज नहीं करते। ये देखिए, ये भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको भी सही नजर नहीं आ रहा होगा। पढ़ने बैठो तो मुझे बहुत स्ट्रगल करनी होगी, तो मैं क्यों पढ़ूंगी, मुझे क्या पड़ी है। मेरा एक यूजर आ रहा है वेबसाइट पर, उसको जब नजर ही नहीं आ रहा तो वो चला जाएगा, वेबसाइट छोड़ देगा। बाकी स्टेप तो बात की बात है, नीचे आना। तो आपने हमेशा वो कलर यूज करना है। अगर आप लाइट यूज कर रहे हैं ना, कलर्स का मैंने आज का लेक्चर यही था कि अगर आप लाइट यूज कर रहे हैं तो आपने उसका जो कंट्रास्ट बनाना है वो ऐसे बनाना है कि उसके ऊपर डार्क कलर हो। इसको अगर आप ब्लैक में रखते हैं ना तो ये इजीली रीडेबल होता है, ठीक है। और ये ब्लैक कर लें या आप कोई डार्क कलर इसमें यूज करें, ठीक है। अच्छा, पहले ये बात हो गई, ये मेन चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर हम नीचे जाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने एक और मिस्टेक क्या की है, अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का टॉपिक ये हमारे अगर आगे हैं तो मैं आपको बताऊंगी। अलाइनमेंट क्या है, ये देखिए, ये तीन कह लें आपके बॉक्सेस हैं, तीन कार्ड्स हैं आपकी, यस आपने अपनी सर्विसेज शो की हुई हैं जिनके अंदर। ये क्या है, ये सेंटर अलाइन है। ये देखिए, इसका टेक्स्ट भी सेंटर है, देखिए सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन नहीं है, राइट अलाइन भी नहीं है, सेंटर अलाइन है। तो इसमें जो हेडिंग है ना, जो इस चीज को दिखा रही है स्किल्स की, ये आपका स्किल्स है, इसको भी आपने सेंटर में ऐड करना था। ये इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर होती है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये यहाँ से लेफ्ट आ रहा हो डायरेक्ट, ये इधर आ जाए, सॉरी सेंटर अलाइन हो, ये लेफ्ट अलाइन हो, ये सेंटर में चला जाए, फिर आगे लेफ्ट अलाइन कर दे। आप इस सेक्शन को पूरे को सेंटर अलाइन ही रखें तो वो अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन सही बनाया आपने, देखिए ये सेंटर अलाइन है, ये सारे जो हैं सेंटर अलाइन है, और उसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये अच्छा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने गलती क्या की है, इसकी आप हेडिंग की साइज देखें, टाइटल की और इसकी साइज देखें, काफ़ी डिफरेंस है। हमेशा एक वेबसाइट के एक पेज के अंदर सेक्शन का जो टाइटल है उसका फॉन्ट, उसकी साइज अपने सेम रखनी है, ताकि यूजर को पता चले कि हाँ ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया है। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन है माय रेज्यूमे, ठीक है, सही है। इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का भी मसला है। ये देखें, ये ऐसा लग रहा है थोड़ा ऊपर हो गया है। ये देखिए, इसको अगर इसके साथ आप अलाइन करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा ना लगता, या अगर इसके साथ करें तो ये एक रेज्यूमे है, ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर एजुकेशन आ रही है ना, ये सब हेडिंग है, तो इसको अब इसके साथ ना रखें, थोड़ा सा अगर नीचे करते हैं, बाकी ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पर भी इशू है थोड़ा सा, वो भी आई थिंक कलर कंट्रास्ट का है। और एक और चीज़ ये है कि फॉन्ट्स जब यूज़ करें ना तो बिल्कुल सबको क्या कहते हैं, इस तरह यूज़ ना करें, सॉरी माइंड से निकल गए, कैपिटल्स में मत करें, सॉरी कैपिटल लेटर मत करें सारे। ये देखिए, ये भी पूरी है पैराग्राफ आप कहने कैपिटलाइज्ड कर दें, मतलब कि पहला जो वर्ड है वो जस्ट कैपिटल हो, या नॉर्मल जो हमारे सेंटेंस की वो होती है
वैसे कर दी, जस्ट पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, इस तरह कुछ कर दें। और कलर कंट्रास्ट भी थोड़ा बहुत करूँगी, टू बी ऑनेस्ट जैसे मैं पहले मैंने इसे विजिट किया तो मुझे इसे सम पढ़ने में इतना सही नहीं हो रहा, मतलब कि इसके जिस फॉन्ट भी थोड़ा छोटा है, मुश्किल हो रही है पढ़ने में। अच्छा इसमें अच्छा मैं बहुत सारी मिस्टेक्स से निकाल रही हूँ क्योंकि आपकी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अलाइनमेंट का थोड़ा इशू है, ये देखिए ऊपर नीचे की स्पेसिंग जो है वो बराबर नहीं है। इसके अलावा ठीक है आपने हाँ परफेक्ट दिया, इसकी स्पेसिंग का थोड़ा इशू है, इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। देखिए ये एक्स्ट्रा स्पेस बच रही है। हाँ ये ठीक है, फॉर्म सही है, नीट है, क्लियर है, सेंटर अलाइन है। अच्छा ये इफेक्ट ना दें तो अच्छा है वैसे। या अगर कलर आप यूज़ कर रहे हैं थोड़ा लाइट शेड करेंगे। अब ये देखिए जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ ये योर सब्जेक्ट जो है ना वो डार्क पे डार्क ग्रे जो है वो विजिबल इतना नहीं हो रहा है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। ठीक है ये थोड़ा मेरे रिव्यूज थे आपकी वेबसाइट पर, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, इसको ऐसा ही है, इसको आप सेट करें, अगेन इस पे थोड़ा वर्क करें। ऐसा पहले आप ऐसा करें कि अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को फिग्मा में डिज़ाइन करें देन उसको डेवलप करें, सबसे बेस्ट वे ये होता है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कोई नहीं कर ले। Okay, I think they are clear now. So it was all about today's session of color theory and psychology, in which we discussed that each color reflects a specific message that makes our design more meaningful and attractive by using colors and contrast are in different shades. Such as if you want to grab viewers' attention on a specific point, we can do it by using a vibrant color. And last, we learned about steps for choosing a color for our design, such as conducting research and keeping in mind the 60, 30, and 10 rule. With that, we will end our session. Thank you, ma'am, for your time. We are also grateful to our participants for their interest. Hope to see you all in the next session. Till that, take care of yourselves. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।